Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Greetings to one and all. On behalf of management of Success Group of School, I, Fat Fatima, principal of Purani Haveli branch, happy to share the exciting news that Purani Haveli branch will now be all girls branch. I cordially invite you all to join for grand inauguration of Purani Haveli Girls Campus on May 5th. तेलंगाना के नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का ने कोत्तागुड़म में एक इंतखाबी जलसे को मुखातिब करते हुए जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार रघुरामी रेड्डी को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेलंगाना ने रघुरामी रेड्डी की तायद में मुनक़िद इंतखाबी जलसे में हिस्सा लेते हुए अपने खिताब में कहा कि अक़लियतों को दिए जा रहे तहफ़्फ़ुज़ात को बरकरार रखने के लिए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की जद्दोजहद जारी है। कांग्रेस कायदीन झूठे मुकदमा दायर करते हुए दहली तलब करने से खौफज़दा नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत मतरूक थर्मल पावर स्टेशंस को दोबारा इस्तेमाल करेगी। सिंगरेनी इलाके में कोयले की तमाम खाने सिंगरेनी के तहत रहने को ही यकीनी बनाया जाएगा। भट्टी विक्रमार्का ने कोत्तागुड़म में स्पॉन्ज आयरन फैक्ट्री खोलकर मुकामी लोगों को रोजगार फराहम करने और आने वाले 5 सालों में ड्वाक्रा बरादरियों को बिलासूद 1 लाख करोड़ रुपए का खर्च फराहम करने का वादा किया है। उन्होंने भद्रादरी कोत्तागुड़म से रघुरामी रेड्डी को भारी अक्सरियत से जीत दिलाकर राहुल गांधी को वजीर आजम बनने में मदद करने की अपील की है और कहा है कि आइन और जमहूरियत को बचाने के लिए राहुल गांधी को वजीर आजम बनना जरूरी है। బీఆర్ పార్టీ సంబంధించిన నాయకత్వం ఈరోజు తగుదనమ్మా అని బయటకు వచ్చి మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ పక్షాన మీ అందరికీ మాటిస్తా ఉన్నాం. యావత్ మంత్రివర్గం మొత్తం కూడా సింగరేణి పరిసర ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి ఏ ఒక్క బొగ్గుబాయిలు కూడా సింగరేణి కాకుండా వేరే ప్రైవేటు వ్యక్తులకి పోయేటట్టుగా చేయం. సింగరేణిని కాపాడుతామని చెప్పి మీ అందరికీ సవినయంగా మనవి చేస్తా ఉన్నాం. అత్యంత చారిత్రాత్మకమైనటువంటి ఒక నిర్ణయం కూడా ఈ సందర్భంగా మీ అందరికీ గుర్తు చేయాలి. సింగరేణిలో పనిచేస్తున్నటువంటి వేలాది మంది కార్మికులు, ఆ కార్మికులు ప్రమాదవశాత్తు పొరపాటు ఏదైనా జరిగితే దేశ చరిత్రలో ఎక్కడ చేయని విధంగా కార్మిక లోకానికి ₹1 కోటి బీమా చేసినటువంటి చరిత్ర కాంగ్రెస్ పార్టీది అని చెప్పి ఈ సందర్భంగా మనం చేస్తా ఉన్నాం. రేపొద్దున కొత్తగూడెం పరిసర ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి స్పాంజ్ ఐరన్ సంబంధించినటువంటి ప్రాజెక్టులు కూడా తిరిగి తెరిపిస్తాం, ఇక్కడ ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పిస్తామని కూడా ఈ సందర్భంగా మనం చేస్తా ఉన్నాం. भारत राष्ट्र समिति के कारगुजार सदर के तारक रामाराव ने रियासती हुकूमत के तेलंगाना में अजला की तंजीम-ए-नौ के मंसूबों की मुखालिफत करते हुए कहा कि इस तरह की कोशिशों से अजला की तरक्की में रुकावट आएगी। भारत राष्ट्र समिति अजला की तंजीम-ए-नौ की सख्ती से मुखालिफत कर रही है। कारगुजार सदर KTR ने कांग्रेस हुकूमत के इस मंसूबे के खिलाफ अवामी तहरीक चलाने का इंतबाह दिया। उन्होंने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से पूछा है कि अगर पार्लिमानी हलकों की बुनियाद पर तंजीम-ए-नौ होगी तो कौन से 16 अजला को बर्खास्त किया जाएगा। KTR ने सीएम रेवंत रेड्डी से राजन्ना सिलसिला जिला रहेगा या नहीं उसका भी जवाब देने का मुतालबा किया है। చెరలో పెట్టిన విధంగా డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ విగ్రహాన్ని కూడా అగౌరవపరిచిన మూర్ఖుడు రేవంత్ రెడ్డి. నేను రేవంత్ రెడ్డి గారికి ఒకటే విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను. నీ ప్రభుత్వానికి చిత్తశుద్ధి ఉంటే, నీ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లాలో మాట్లాడుతున్న నాయకులు కూడా మీకు చిత్తశుద్ధి ఉంటే నేను మిమ్మల్ని ఒకటే అడుగుతా ఉన్నాను. కొత్త జిల్లాలు ఏవైతే తెలంగాణ ప్రభుత్వం కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో ఏర్పాటు చేసిందో వీటిని ఖచ్చితంగా కొనసాగించాలి. కొనసాగించకపోతే తిరిగి ప్రజా ఉద్యమం తప్పదు. దానికి ఈసారి బీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకత్వం వహిస్తుందనే మాట కూడా నేను వారిని హెచ్చరిస్తా ఉన్నాను. ఎందుకంటే ఈ జిల్లాలు ఏర్పాటు చేసింది ప్రజల ఆకాంక్షకు అనుగుణంగా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది, ప్రజల పోరాటాలకు అనుగుణంగా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. అంతేగాని
ఇష్టానుసారంగా జరగలేదు. అందుకే రేవంత్ రెడ్డి నేను అడుగుతున్నా, మీ పార్టీ వాళ్ళు చెప్తా ఉన్నారు పార్లమెంటుకు ఒకటే జిల్లా ఉండాలి అంటున్నారు. అంటే 17 పార్లమెంట్లకు 17 జిల్లాలు ఉండాలన్నది ఒక విధానంగా నువ్వు చెప్తా ఉన్నావు, విధానపరమైన నిర్ణయం అని చెప్పి మీ పార్టీ వాళ్ళు చెప్తా ఉన్నారు. మరి 33 జిల్లాల్లో ఏ జిల్లాలను తొలగిస్తారు, ఏ జిల్లాలను కొనసాగిస్తారు, తప్పకుండా ప్రజలకు తేటతెల్లం చేయాలని చెప్పి నేను డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాను. కరీంనగర్ పార్లమెంట్ పరిధిలో ఇవాళ కరీంనగర్ జిల్లా ఉంది, రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా ఉంది. మరి దేన్ని కొనసాగిస్తారు, దేన్ని తీసేస్తారు చెప్పాలా రేవంత్ రెడ్డి అని చెప్పి నేను డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నా. రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా తీసేస్తావా లేదా కరీంనగర్ జిల్లా ఎత్తేస్తావా చెప్పాలా. भारत राष्ट्र समिति के सिद्दीपेट एमएलए हरीश राव ने कांग्रेस हुकूमत की जानिब से 6 जमानतों पर अमल किए जाने के दावों को रद्द करते हुए कहा कि 6 में से सिर्फ 1 जमानत पर अमल किया गया है। साबिक वजीर हरीश राव ने तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत की जानिब से 6 जमानतों पर अमल किए जाने के दावों पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि 6 में से 5 जमानतों पर अमल नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि पहली जमानत के तहत हर खातून को 2500 रुपये देने का ऐलान किया गया था, ताहम उस पर अमल नहीं हुआ। दूसरी गारंटी के तहत किसानों को 15,000 रुपये रईतु बंधु, 500 रुपये बोनस और ज़रूरी मजदूरों को 12,000 रुपये देने का वादा किया गया था, लेकिन उस पर भी अमल नहीं किया गया। उन्होंने याद दिलाया कि तीसरी गारंटी के तहत 100 दिनों के अंदर तमाम गरीबों को इंदिरा हाउस और 250 गज जमीन देने का वादा किया गया था। चौथी जमानत के तहत नौजवानों की तरक्की के लिए काम करने और तलबा को 5 लाख रुपये तालीमी इंश्योरेंस देने का वादा किया गया था, जो कि सिर्फ वादा ही रहा, उस पर अमल नहीं किया गया। हरीश राव ने कहा कि 5वीं जमानत के तहत रियासत के ज़ईफ़ों और बेवाओं को 4,000 रुपये वजीफा देने का भी वादा किया गया था, लेकिन उस पर भी अमल नहीं किया गया। हरीश राव का कहना है कि हकीकत यह है कि 6 में से 5 जमानतों पर अमल ही नहीं हुआ। ఏమీ లేదు. మీ 5 నెలల పాలనలో ఉన్నవి ఊడవిక్తా ఉన్నారు. ప్రజల కష్టాలు ప్రారంభమైనటువంటి పరిస్థితి ఉంది. ఇవాళ మీరు 6 గ్యారంటీలు అన్నారు. మీ 6 గ్యారంటీల్లో అసలు నిజంగా అమలైనాయా? 6 గ్యారంటీలు 5 అయిపోయినాయని ఒక సత్యదూరమైన విషయం మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. ఇది కాంగ్రెస్ పార్టీ మేనిఫెస్టో. ఈ మేనిఫెస్టోలో వాళ్ళు ఇచ్చిన 6 గ్యారంటీలు మీరు చూస్తే ఈ 6 గ్యారంటీల్లో 5 అయిపోయినాయి అంటున్నారు. నేను మీ ద్వారా రాష్ట్ర ప్రజలకు చెప్పదలుచుకున్నా, కాంగ్రెస్ పార్టీని అడగదలుచుకున్నా, 6లో 5 అయినాయా? 6లో మొదటి గ్యారంటీ మహాలక్ష్మి. ఈ రాష్ట్రంలోని ప్రతి మహిళకు 2,500 రూపాయలు ఇస్తామన్నారు. అమలైందా? కాలేదు. అంటే మొదటి గ్యారంటీ ఫెయిల్. రెండవ గ్యారంటీ రైతులకు రైతు బంధుకు 15,000 రూపాయలు, వడ్లకు మొక్కలకు 500 బోనస్, వ్యవసాయ కూలీలకు 12,000 అయిందా? రెండవ గ్యారంటీ కాలేదు, ఫెయిల్. మూడవ గ్యారంటీ ఇందిరమ్మ ఇండ్లు. పేదలందరికీ 100 రోజుల్లో ఇల్లు మంజూరు చేస్తామని 5 లక్షల రూపాయలతో ఇస్తాము, 250 గజాల స్థలం ఇస్తామన్నారు. ఒక్కరికన్నా ఇచ్చింది ఆ రాష్ట్రంలో? జరగలేదు. మూడోది ఫెయిల్. నాలుగోది యువ వికాసం. విద్యార్థులందరికీ 5 లక్షల విద్యా భరోసా కార్డు అన్నారు, నిరుద్యోగ భృతి అన్నారు. నాలుగోది కూడా అమలు కాలేదు, ఫెయిల్. ఐదవది చేయూత. రాష్ట్రంలో వృద్ధులకు, వితంతువులకు, ఆసరా పెన్షన్దారులకు 4,000 పెన్షన్ ఇస్తామన్నారు. ఐదవది ఇవ్వలేదు, ఫెయిల్. नामपल्ली की अदालत ने बीआरएस लीडर कृष्ण को 1 दिन के लिए पुलिस तहवील में रखने की इजाजत दे दी है। पुलिस उन्हें 5 मई को चंचलगुड़ा जेल से तहवील में लेगी। तफसीलात के मुताबिक बीआरएस सोशल मीडिया इंचार्ज माने कृष्ण को पुलिस ने 1 मई को उस्मानिया यूनिवर्सिटी कैंपस के हॉस्टल्स और मेस को बंद करने से मुताल्लिक सोशल मीडिया के जरिए फर्जी खबर फैलाने के मामले में गिरफ्तार किया था। पुलिस ने कृष्ण को अदालत में पेश करते हुए 2 दिन की तहवील तलब की थी। अदालत ने पुलिस को कृष्ण को 1 दिन की रिमांड पर लेने की इजाजत दे दी है। माने कृष्ण फिलहाल चंचलगुड़ा जेल में है। कल यानी 5 मई को पुलिस उन्हें तहवील में लेगी। माने कृष्ण की अहलिया सर्वे सुहासनी ने अपने शौहर की हिफाजत को लेकर फिक्रमंदी जाहिर की है। उन्होंने इस केस पर कई शुकूक व शुबात का भी इजहार किया है। Thank you.
हैदराबाद के पुराने शहर में इंतखाबी सरगर्मियों में बच्चों को इस्तेमाल करने पर मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह और मरकजी वज़ीर सियाहत जी किशन रेड्डी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। मुगलपुरा पुलिस की जानिब से जारी की गई FIR के मुताबिक वज़ीर दाखिला अमित शाह ने 1 मई को हैदराबाद लोकसभा हल्के में लाल दरवाजे से सुधा टाकिस तक एक इंतखाबी रैली में हिस्सा लिया था। याद रहे कि रैली का अख्तिताम सुधा टाकिस पर हुआ था, जहां एक जलसे आम मुनक्किद किया गया था। स्टेज पर अमित शाह के साथ चंद बच्चे भी थे और एक बच्चा बीजेपी के निशान के साथ देखा गया था। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जी निरंजन ने एक शिकायत दर्ज करवाई है। FIR के मुताबिक हैदराबाद बीजेपी उम्मीदवार के माधवीलता, सिकंदराबाद के उम्मीदवार जी किशन रेड्डी और बीजेपी MLA राजा सिंह भी मुलजिम हैं। कांग्रेस कायद राहुल गांधी का कहना है कि मरकज में कांग्रेस के बरसर इक़्तिदार आने के बाद जात पात की मर्दमशुमारी की जाएगी, मुल्क के लोगों को हिंदुस्तान की हकीकत का पता चल जाएगा। AICC के साबिक सदर व वायनाड रुकन पार्लियामेंट राहुल गांधी ने रियासत महाराष्ट्र के पुणे में एक इंतखाबी जलसे को मुखातिब करते हुए कहा कि कांग्रेस ने अपने मंशूर में वाज़ेह तौर पर लिखा है कि जब मरकज में कांग्रेस बरसर इक़्तिदार आएगी तो जात पात की मर्दमशुमारी करवाई जाएगी, मुआशी सर्वे किया जाएगा और तमाम तंजीमों का भी सर्वे कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रेस, मीडिया, कॉरपोरेट वर्ल्ड, प्राइवेट अस्पतालों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में बहुत से लोग पसमानदा तबके SC और ST से ताल्लुक़ रखते हैं। कांग्रेस की जानिब से कराए जाने वाले इस सर्वे को उन्होंने एक इनकलाबी इक़दाम करार देते हुए कहा कि जिस दिन जात पात की मर्दमशुमारी की जाएगी, मुल्क के लोगों को हिंदुस्तान की हकीकत का पता चल जाएगा। नब्बे लोग हिंदुस्तान की सरकार को चलाते हैं, 90 IAS अफसर हैं, बजट को वो बांटते हैं। महाराष्ट्र को कितना पैसा मिलेगा, कर्नाटक कितना जाएगा, सड़कों में कितना जाएगा, डिफेंस में कितना जाएगा, शिक्षा स्वास्थ्य में कितना जाएगा, वो 90 लोग डिसाइड करते हैं। उनकी लिस्ट निकाली मैंने, चलो देखते हैं पिछड़े कितने हैं, दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं। 90 में से 3 OBC हैं, 3 दलित हैं, 1 आदिवासी है और बैक ऑफिस में बैठा रखे हैं। आप ये मत सोचिए कि फाइनेंस मिनिस्ट्री में है, डिफेंस मिनिस्ट्री में है, बड़ी मिनिस्ट्री में नहीं। नहीं 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 7 लोग हैं। 73% आपकी आबादी 7 लोग हैं 90 में से, पीछे बैठा रखे हैं। चू नहीं कर सकते वो। और अगर 100 रुपए खर्च होता है बजट में तो 6 रुपए 10 पैसे का निर्णय ये 7 अफसर लेते हैं और कभी भी इनका वीटो लग सकता है। और यही हालत हर सरकार में है। महाराष्ट्र की सरकार में भी यही है, उत्तर प्रदेश की सरकार में भी यही है, दिल्ली की सरकार में भी यही है। Assalamu alaikum everyone. I Lubna Usman, Academic Head Success the School. Welcome to the newly transformed Purani Haveli Girls Campus, where excellence meets empowerment. Let's have a closer look what makes this campus so special. With top-notch security measures, parents can rest knowing their daughters are safe and protected all the time. Join us on May 5th for the grand inauguration of Purani Haveli Girls Campus. So, if you're looking for a school where your daughters can thrive academically, socially and personally, Success the School, Purani Haveli branch is the right choice. रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने अक़लियतों को दिए जा रहे तहफ़्फ़ुज़ात बर्खास्त करने का वादा करने वाले बीजेपी कायदीन पर नुक्ताचीनी करते हुए कहा है कि उन्हें तेलंगाना में वोट मांगने का हक नहीं है। पूनम प्रभाकर ने बीजेपी के रियासती सदर जी किशन रेड्डी, बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी बंडी संजय कुमार को एक खुला खत रवाना करते हुए अपने सवालात के जवाबात तलब किए हैं। उनका कहना है कि बीजेपी को जो रिजर्वेशन के खिलाफ है, BC, SC और ST के वोट मांगने का हक नहीं है।
बीजेपी तहफ़्फ़ुज़ात की मुखालिफत करती आ रही है और तहफ़्फ़ुज़ात को मंसूख करने की साजिश कर रही है। रियासती वजीर ने बंडी संजय से पार्टी के मौक़िफ़ के बारे में सवाल करते हुए कहा कि अगर वो तहफ़्फ़ुज़ात की मुखालिफत करेंगे, तहफ़्फ़ुज़ात को ख़त्म करने की साजिश करेंगे तो तेलंगाना की आवाम उन्हें सबक सिखाएगी। पूनम प्रभाकर ने मजीद कहा कि बीजेपी कायदीन उनके सवालात के जवाब दें कि तेलंगाना की आवाम को बीजेपी को क्यों वोट देना चाहिए। टीपीसीसी के कारगुजार सदर जग्गा रेड्डी ने गजबेल में मेदक पार्लिमानी हल्के के उम्मीदवार नीलम मधु की तायद में इंतखाबी मुहिम चलाते हुए उन्हें कामयाब बनाने की पुरजोर अपील की है। मेदक पार्लिमानी हल्के के उम्मीदवार नीलम मधु की तायद में गजबेल हल्के में हफ्ते को एक रोड शो मुनक्किद किया गया। टीपीसीसी के कारगुजार सदर जग्गा रेड्डी ने इस मौके पर बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। रोड शो गजबेल कस्बे की अहम सड़कों, मौलाना सागर की कच्ची आबादियों और दीगर इलाकों में तकरीबन 2 घंटे से ज़ायद वक्फे तक जारी रहा। बादशाह एक कॉर्नर मीटिंग भी मुनक्किद की गई। जग्गा रेड्डी ने कॉर्नर मीटिंग को मुखातिब करते हुए कहा कि राहुल गांधी मुल्क के वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं। हल्के गजबेल की आवाम को कांग्रेस के हाथ मजबूत करने और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को 25,000 वोटों की अक्सरियत से कामयाब बनाने की ज़रूरत है। उन्होंने मौलाना सागर के मकीनों के मसाइल हल करने, उनको मुनासिब मुआवजा दिलाने के लिए सख्त मेहनत करने का वादा किया। साबिक एमएलए ने बीसी लीडर नीलम मधु मुदिराज को कामयाब बनाने की पुरजोर अपील की। तेलंगाना हाईकोर्ट के वकील ने गुरुकुल कॉलेजेस को तातीलात न देने और तातीलात के दौरान कमजोर तुलबा के लिए स्पेशल क्लासेस चलाने वाले कॉरपोरेट कॉलेजेस को शो कॉज नोटिस देने के खिलाफ अदालत से रुजू किया है। रियासती महकमा तालीम की जानिब से स्कूलों और कॉरपोरेट कॉलेजेस के लिए तातीलात का ऐलान कर दिया गया है, जबकि गुरुकुल कॉलेजेस के तुलबा को गरमाई तातीलात नहीं दी गई हैं। बताया गया है कि गुरुकुल कॉलेजेस में तुलबा के लिए क्लासेस का इनेकाद किया जा रहा है। तेलंगाना हाईकोर्ट के वकील सुनील कुमार और KVN प्रसाद ने तातीलात में क्लासेस मुनक्किद करने वाले कॉरपोरेट कॉलेजेस को वजह बताओ नोटिस जारी करने और गुरुकुल कॉलेजेस के तुलबा को तातीलात न देने के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और एक अर्जी दायर करते हुए इस सिलसिले में मुनासिब कार्रवाई करने की दरख्वास्त की है। A. Sunil Kumar and KVN Prasad and Murli Krishna, we all are the High Court advocates. ये तेलंगाना स्टेट में सीएम ने जितने भी कॉलेजेस है 30 मार्च से 31 मार्च तक हॉलीडेज बोल के डिक्लेयर करे, लेकिन गुरुकुल वाले ये 15 मई तक कॉलेज रन करने के लिए कॉलेज चलाने के लिए डिसाइड करके चला रहे। और मेरा आर्गुमेंट ये है, कॉलेजेस चलाना है सबको चलाने के लिए परमिशन दे दो, और बंद करना है सबको बंद करने के लिए परमिशन दे दो। और गुरुकुल कॉलेज वाले बच्चों के लिए 15 मई तक कॉलेज चलाने के परमिशन, और अदर देन गुरुकुल वाले कॉलेजेस को जो कॉलेज चला रहे हैं उसको शोकाज नोटिस दे रहे। इसलिए मैं ऑनरेबल हाईकोर्ट से रिक्वेस्ट करा, जिन जिन कॉलेजों को शोकाज नोटिस इशू करे वो विड्रा करो, या नहीं तो गुरुकुल कॉलेजेस को शोकाज नोटिस इशू करो। इतना ही मेरा रिक्वेस्ट है। और जो भी वॉलंटियरली आना चाहते हैं तो उसको ना कोर्ट रोक सकते, ना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट रोक सकते, कोई भी नहीं रोक सकते, लेकिन ज़बरदस्ती कॉलेजेस को बुला के बच्चों को पढ़ाना ये तो जुल्म है। इसके खिलाफ मैं हाईकोर्ट में पिटीशन डाला और रिट पिटीशन का नंबर भी आया। द रिट पिटीशन नंबर इज़ 18575 ऑफ 2024। हैदराबाद यूनिवर्सिटी के PhD स्कॉलर रोहित वेमुला की वालदा राधिका वेमुला ने तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात करते हुए उनके खानदान के साथ
इंसाफ करने की दरखास्त की है। हैदराबाद यूनिवर्सिटी के तालिबे इल्म रोहित वेमुला के साल 2016 में खुदकुशी करने का वाकया पेश आया था। तेलंगाना पुलिस की जानिब से पीएचडी स्कॉलर की मौत से मुताल्लिक़ जारी तहकीकात बंद करने के एक दिन बाद मुतवफ़ी के अहल खाना ने तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात करते हुए एक अर्जी सौंपी और केस की दोबारा तहकीकात करने की दरख्वास्त भी की। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना ने रोहित वेमुला की वालदा राधिका वेमुला को यकीन दिलाया है कि उनके बेटे की खुदकुशी मामले की दोबारा तहकीकात की जाएगी और इंसाफ को यकीनी बनाया जाएगा। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के याकूतपुरा रुकन असम्बली जाफर हुसैन मिराज ने रन बाजार डिवीजन में घर घर मजलिस मुहिम चलाकर राय दहिंदों से पतंग के निशान को वोट देने की अपील की है। हल्के पार्लिमान हैदराबाद के मजलिसी उम्मीदवार बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी की तायद में याकूतपुरा एमएलए जाफर हुसैन मिराज ने हफ्ते को रन बाजार डिवीजन में इंतखाबी मुहिम चलाई और शहरियों से सदर मजलिस बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी को अपना कीमती वोट देकर कामयाब बनाने की अपील की। इंतखाबी मुहिम में रन बाजार डिवीजन कॉर्पोरेटर मोहम्मद वासिउद्दीन, यूथ लीडर यासर अरफात, सादिक सिराज के अलावा दीगर ने भी हिस्सा लिया। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारवान रुकन असम्बली कौसम मोहिउद्दीन ने हल्के पार्लिमान हैदराबाद के उम्मीदवार बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी की तायद में इंतखाबी मुहिम चलाई। तेलंगाना की 17 लोकसभा सीटों पर 13 मई को रायदही होनी है। पार्टियों की इंतखाबी मुहिम उरूज पर है। हल्के पार्लिमान हैदराबाद से मजलिस के उम्मीदवार बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी की कामयाबी के लिए मजलिसी कायदीन जोर शोर से मुहिम चला रहे हैं। कारवान एमएलए कौसम मोहिउद्दीन ने हफ्ते को नूरानी मस्जिद, फतेह दरवाजा, धनकोटा, मस्जिद कौसर, सालेह नगर कांचा, रोज फंक्शन हॉल, शिवा मंदिर, अशरफी मस्जिद और अतराफ व अकनाफ के इलाकों का पैदल दौरा करते हुए घर घर मजलिस मुहिम चलाई। उन्होंने अवाम से अपील की है कि वो सदर मजलिस के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करते हुए उन्हें भारी अक्सरियत से कामयाब करें। पार्टी के कॉरपोरेटर, सीनियर लीडर्स, इब्तदाई सुदूर मोतमदीन व दीगर ने भी इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। मीर चौक ट्रैफिक पुलिस हुदूद में ड्रंक एंड ड्राइव मुहिम के दौरान कुछ नौजवानों की जानिब से जो कि हालत नशा में थे, हंगामा आराई करने का वाकया पेश आया। तफसीलात के मुताबिक कल रात मीर चौक ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ड्रंक एंड ड्राइव मुहिम चलाई गई। चंपापेट मेन रोड पर कुछ नौजवानों ने जो कि नशे में थे खूब हंगामा आराई की और पुलिस के साथ झगड़ा किया। पुलिस की जानिब से एक नौजवान को जदकोब किया गया और हंगामा आराई करने वालों की मोटरसाइकिलें जब्त कर ली गई। साहब गाड़ी
कई को गाड़ी पकड़े, गाड़ी को कई को खराब कर रहे, हाँ, गाड़ी को कई को खराब कर रहे, हाँ, तुम्हारा गाड़ी है, तुम्हारा गाड़ी तोड़ दिए, तुम्हारी गाड़ी हमारी गाड़ी है वो, पैसे लेके भी हमारी हाँ, मेरे भी पैसे लिए, तो हमारे पैसे लिए तुम पैसे लेके क्या करेंगे? चुप रहे हो, चुप रहो, कहीं को रहेंगे हम कहीं को रहेंगे बताओ, अरे हम कहीं को रहेंगे आपका नहीं, आप पैसा लिए 5,000 रुपए लिए तो गाड़ी क्या देखे तुम 5,000, हाँ भाई दिया देखे तुम 5,000, तुम ले जाओ सारे गलत कर रहे तुम मैंने गाड़ी पे हाथ लगाए तो ये गाड़ी है हमारी गाड़ी पैसे तुम्हें दिए अपना वो साफ भी कर ले, वो साफ तुम देखे कभी भी तुम, अरे आओ आओ जी निकाल बात करो गाड़ी कुछ भी नहीं है शहर हैदराबाद के कुकटपल्ली साईनगर में एक स्क्रैप की गोदाम में सिलेंडर फटने के बाद आग लगने का वाकया पेश आया। तफसीलात के मुताबिक साईनगर में एक स्क्रैप की दुकान में रखा हुआ सिलेंडर फट गया, जिसके बाद आग लग गई और वहां मौजूद सारा सामान जलकर खाकसर हो गया। मुकामी लोगों ने पुलिस और आतिशपुरो अमले को मतला किया। फायर ब्रिगेड अमले ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। लोगों का इल्जाम है कि गोदाम में बगैर इजाजत छोटे गैस सिलेंडर रखे गए हैं, जिसकी वजह से ये हादसा पेश आया। इस हादसे में कोई जख्मी नहीं हुआ है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर तहकीकात का आगाज किया है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।